जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गणित की चौपा, देन यू विल गेट continuously my all the videos and lectures. Student, in my previous video we have learned about the irrational numbers. Today we are going to learn real numbers. What is real number? Take a box and write some rational number on some slips and write some irrational number on some slips and mix all of these slips in a box like this. Take some irrational numbers and some irrational number under 2, under 3, pi and under 5, under 6, under 7. Mix all of them, rational and irrational numbers. Then we get a mixture of rational and irrational numbers. This collection is called real numbers. What is real number? So real number is the collection of rational and irrational numbers. अगर आप कुछ स्लिप्स पर रेशनल नंबर्स लिखते जाएं, कुछ स्लिप्स पर इरेशनल नंबर्स लिखते जाएं, उन्हें एक बॉक्स में डाल दें, तो आपके पास जो मिक्सचर तैयार होगा वो रियल नंबर होगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल द रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स आल्सो रियल. सेपरेटली वी कैन से rational and irrational, but collectively we can say all of these rational and irrational numbers are real numbers. So real number is the collection of rational and irrational, means under root 2 separately irrational, but combinedly we can say it is real. 1 by 2 separately it is rational, but collectively we can say it is real. So all the natural whole numbers, integers, rational and irrational, these numbers are real numbers. So इन सारे रियल नंबर्स के ब्याह पर अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स. स्टेट वेदर, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. एवरी इरेशनल number is real number. Yes, it is true, because all the real numbers, all the rational numbers and all the irrational numbers are real numbers. यहाँ चेंज हो सकता है, रेशनल भी पूछ सकता है. एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर. यस. ऑल एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. इट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज कलेक्शन ऑफ rational and irrational numbers is called real numbers. Second, every point on the number line is on the form of under m, where m is a natural number. Second, every point on the number line is on the form under m. Every point on the number line. Here, number line having positive and negative both. In this situation, this under m represent negative numbers. In this situation, second is false. So collectively we can say it is false. Why? Every point on the number line is on the form under m. Is on the form under m. अगर नंबर लाइन का हर पॉइंट अंडर एम के टाइप का हो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो नेगेटिव नंबर अंडर एम के फॉर्म के नहीं होते, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा.
वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर एवरी पॉइंट की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स के कारण ही फॉल्स होगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर 1/2 रियल, बट इट इज नॉट इरेशनल, इट इज रेशनल। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, इट इज फॉल्स। Why? Every real number 1/2 is a real number, -11/7 real number, -1 real number, -2 real number, but they are not irrational, they are rational. इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, every real number is an rational, in this situation it is also false. So true and false, justify your answer. This question is completed. Next question, question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? All positive integers irrational. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. Are the square root of Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example. Irrational. What is irrational? When the numbers which cannot express in the form of terminating decimal expansion and non-terminating recurring decimal expansion. It can be expressed only in the form of non-terminating, non-recurring decimal expansion. It is called irrational number. √1, √2, √3, √4 we can 2. It is we can write 1. It is we can write 3. √9 is 3. √4 is 2. So it is rational. So are the square roots of all positive integers irrational? If not, yes, no. No, all the square roots of positive integers are irrational. Give an example. We can give so many examples. All the complete square roots are irrational. Rational number is the rational. √4 is irrational. √3 irrational, but √4 rational, because the value of √4 is 2. The value of √9 is 3. They are rational. Next question. Show how √5 can be represented on the number line. एग्जाम में जरूरी नहीं है कि √5 ही पूछा जाए, चेंज भी क्या सकता है। इसलिए प्रोसेस को समझिए कि हम कैसे एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। नंबर लाइन को हमेशा कंपास की सहायता से ड्रॉ कीजिए। आप एक मिन पॉइंट लीजिए। सबसे पहले इसको हमने मिन पॉइंट लिया और एक कोई भी आर्क। नंबर लाइंस को मैं कंपास से ड्रॉ करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप रूलर का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, तो या तो आप सेंटीमीटर का डिफरेंस लेते हैं या इंच का डिफरेंस लेते हैं। तो ऐसा महसूस होता है स्टूडेंट्स को कि नंबर लाइन का मीनिंग ही है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। ऐसा नहीं है। नंबर लाइन्स का मतलब ये है कि इक्वल डिफरेंस पर जो है आपका डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। लेकिन अगर हम स्केल से बनाते आते हैं तो हमेशा हमारे मन में रहता है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ही नंबर लाइन है। ऐसा नहीं, डिफरेंट जो डिस्टेंस है उसको हम नंबर लाइन पर नहीं लेते, इक्वल डिस्टेंस। तो हमने कोई सा भी एक आर्क लिया, लेकिन अब इसको फिक्स रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। तो जैसे कि हमने नंबर लाइन के हिसाब से, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5 और आगे भी जा सकते हैं। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है सारे कट, इसलिए हम ये नंबर लाइन, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। ये भी एक नंबर लाइन।
अगर कोई स्टूडेंट आर्क ज़्यादा बड़ा करके इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर कट लगाता तो वो उसकी नंबर लाइन है। एक स्टूडेंट ने कम आर्क से नंबर लाइन को ड्रा किया, दूसरे ने ज़्यादा आर्क से किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं। इसलिए कंपास की हेल्प से आप नंबर लाइन बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम डायरेक्टली √5 पर नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट हम √2 नंबर लाइन पर कितना डिस्टेंस होता है ये पता करते हैं। तो स्टूडेंट ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। अब अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कंपास की हेल्प से आपको करना आता होगा। नहीं भी आता है तो 1 पर अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कंपास की हेल्प से करना है तो आप यहाँ पर इससे 1 यूनिट पहले कंपास को लीजिए, कोई भी आर्क ले लीजिए, लेकिन सेम आर्क को फिर आपको 2 पर रख करके बनाना है। और जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ आप स्केल की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब हम जितना यूनिट आपने नंबर लाइन पर लिया था 1 यूनिट, उतना आर्क अपने कंपास पर लेंगे ये, और इसको मैं अगर यहाँ पर कट करता हूँ तो आप लोगों को ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। इसको हमने O नाम दिया, इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है जब आप O को B से ज्वाइन करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये आएगा आपका √2 यूनिट। इसका मतलब है कि जो इतना डिस्टेंस है वो √2 यूनिट है। ये जो डिस्टेंस है जो आपका हाइपोटेन्यूस आया है राइट एंगल ट्रायंगल OAB में, ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो आपका √2 यूनिट है। अब हमारे पास √2 यूनिट डिस्टेंस कितना होता है वो आ गया है। तो मैं इतना आर्क ओपन किया नंबर लाइन पर हाइपोटेन्यूस के इक्वल, और इसको मैं अब कट करता हूं तो ये यहां पर कट होता है इससे। तो फ्रेंड्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो √2 यूनिट है, ये यहां से यहां तक। तो ये हमने फाइंड आउट किया √2 यूनिट। अब आपसे पूछा जा सकता है फाइंड आउट √3 और नंबर लाइन, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं √3 के लिए। अब यदि आपको √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको √2 तक जाना होगा। जब आप ये वाला हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं √2, तो इस हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसके लिए डी का यूज भी कर सकते हैं और कंपास का भी, दोनों का यूज कर सकते हैं। डी का यूज करने पर इस पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर लाइन लेना है, इसलिए मैं 90 डिग्री का एंगल, ये 90। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई ये हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है। अगेन 1 यूनिट का आर्क लेंगे हम, ये 1 यूनिट का आर्क है, इसको हमने B पर रखकर आर्क काटा। ये हमारा आर्क है, इसको हमने नाम दिया C। अब आप समझिए ये √2 है, यहां पर राइट एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये 1 यूनिट है, BC 1 यूनिट है,
और आपका OB √2 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से O से लेकर C का डिस्टेंस कितना आएगा, O से लेकर C तक। तो राइट एंगल ट्रायंगल OBC में, इन राइट ट्रायंगल OBC, दिस इज हाइपोटेनस, ये राइट एंगल है तो इसके सामने हाइपोटेनस OC, दिस इज √2, और ये हमने 1 यूनिट ड्रॉ किया था, BC 1 यूनिट, √2 मीन्स 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1 मीन्स 3, OC स्क्वायर मीन्स OC इज इक्वल टू √3। तो ये जो डिस्टेंस आया ये आया आपका √3 यूनिट O से लेकर C तक। अब आपके पास √3 डिस्टेंस है O से लेकर C तक, तो ये मैंने O पर कंपास को रखा और C तक मैंने कंपास को ओपन किया, तो मेरे कंपास पर ये जो डिस्टेंस है ये √3 के इक्वल है। अब मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने O पर कंपास को रखा और ये नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, तो इस तरह से यहाँ जो आर्क बना मेरा वो √3 के इक्वल है। तो ये यहाँ तक का जो है ये हो गया √3 यूनिट। अब फ्रेंड्स √3 से आगे हम बढ़ सकते हैं √4। √4 की प्रोसेस वही है कि आपको √3 तक आना होगा। पहले आपने √2 बनाया, फिर आप √3 पर आ गए, ये √3 आ गया। अब जो OC है इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये OC पर मैंने D को रखा, आप कंपास की हेल्प से ही बना सकते हैं, और ये OC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। अब C पर कंपास रखकर आपको 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। तो ये 1 यूनिट मेरे पास इतना है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट, ये हो गया आपका D। तो जब मैं O को D से मिलाता हूं तो ये √3 है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपने 1 यूनिट लिया है √2 √3, तो ये आपका आएगा √4 इतना डिस्टेंस। √5 आप फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से D पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी। इस पर 1 यूनिट पर आप आर्क लीजिए कंपास की हेल्प से, ये जो 1 यूनिट है इतना, इसको नाम दिया E। अब E को जब आप O से मिलाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब E को आप O से मिलाएंगे तो ये 1 यूनिट है √4, तो √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। √4 मीन्स 4 प्लस 1 मीन्स 5, OE इज इक्वल टू √5। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो आपका √4 आएगा। इस पूरी प्रोसेस से आप √2 निकालना भी सीखते हैं, √3 निकालना भी सीखते हैं, √4 निकालना भी सीखते हैं, √5 भी निकालना सीखते हैं, और आगे बढ़ती जाइए आप √6 भी निकाल पाएंगे, √7 भी निकाल पाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट भी √5 निकाल सकते हैं डायरेक्ट। वो कैसे निकालेंगे? आप नंबर लाइन लीजिए 1 2, यहां पर आप 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लीजिए और परपेंडिकुलर लाइन पर 1 यूनिट का, ये 2 यूनिट हो गया 1 एंड 2, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, इस पर आप 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लीजिए कंपास की हेल्प से इतना। तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये √5 डिस्टेंस होगा। कैसे होगा? तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस OB स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ ए, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 2 2 4 प्लस 1 5 मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। आप अंडर रूट 5 डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये अंडर रूट 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कंपास की हेल्प से ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर लाइन अगर आपसे कंपास होता है तो अभी आप कंपास का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोटेक्टर का यूज भी कर सकते हैं। आपके पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर की हेल्प से भी आप परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप अंडर रूट 2 निकालना सीख गए, अंडर रूट 3 निकालना सीख गए, अंडर रूट 4 निकालना सीख गए, अंडर रूट 5 निकालना सीख गए। आगे बढ़ते जाइए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर किस तरह से इरेशनल नंबर को शो करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।